السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینیات کورس میں مسائل فقہیہ پڑھانے کے لیے بہار شریعت پڑھائی جا رہی ہے۔ وضو کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں وضو کے 4 فرائض لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ 4 فرائض بیان ہوں گے، پھر ان کی تشریح بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں جو 4 فرائض ہیں ان میں پہلا فرض منہ دھونا، دوسرا ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یعنی کوہنیاں بھی آ جائیں گی دھونے میں، کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں کے ساتھ۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنوں کے ساتھ دونوں پاؤں کا دھونا۔ دیکھیے فائدہ، کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اس کی تشریح ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، یہاں دوبارہ تشریح نہیں کریں گے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ دیکھیے وضو میں آپ توجہ نہیں دیں گے اور کچھ ایسی غلطی ہوگی کہ فرض ادا نہ ہو، تو پھر فرض ادا نہ ہو تو وہ وضو ہی نہیں ہوگا، اور آپ کتنی بھی خلوص سے نماز پڑھیں وہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو صحیح ہونا ضروری ہے۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ مسح کی تعریف دیکھیے، موضع حدث یعنی وضو اور غسل میں جسم کے جن حصوں کو دھویا جاتا ہے ان کو موضع حدث کہتے ہیں، تو تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں، اور کم از کم 2 بوند اگر بہہ جائیں تو اس کو دھونا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے منہ دھونا وضو میں ایک فرض ہے، اس کی تشریح یہاں پر ہوگی۔ منہ کہاں سے کہاں تک دھوئیں گے؟ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، ٹھوڑی تک، طول میں یعنی لمبائی میں چہرہ اتنا دھونا ہے، اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ یعنی منہ دھونا فرض ہے تو منہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ منہ جہاں سر کے بال ختم ہو رہے ہیں آ کر، جہاں سے پیشانی شروع ہو رہی ہے وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ منہ کی حد ہے، اتنا حصہ دھونا ضروری ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ فرض ہے۔ 1 مرتبہ بہا لیں گے وضو ہو گیا، مگر سنت ادا کرنے کے لیے اور 2 بار دھونا پڑے گا، اور اگر 1 بار بھی نہیں دھولا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ اب اگر کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، پانی اگر وہاں نہیں بہا تو فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر حصے پر پانی بہانا فرض تھا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح منہ دھوئیں کہ پورا منہ ہم نے دھو لیا لیکن پیشانی میں بالوں کے پاس تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے جس کے سامنے کے بال گر گئے، یعنی وہ بال وہاں چلے گئے ہیں، عمر ڈھلنے کے بعد، عمر زیادہ ہونے کے بعد وہ سامنے سے بال صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل جلد رہ جاتی ہے، بال ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ کہاں تک دھوئیں گے چہرہ؟ ان کے تو وہاں بال ہی نہیں ہے، کہ اوپر یہ کہا گیا کہ بال جہاں ختم ہو رہے ہیں وہاں سے چہرہ شروع، تو ان کے بال تو تالو پر ہی ختم ہو گئے ہیں، وہاں سے چہرے کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ عام طور سے بال جہاں سے
जमना शुरू होते हैं सर के, यानी पेशानी आमतौर से जितनी होती है बस उतनी ही ली जाएगी, उसके बाद का हिस्सा सर में ही शुमार किया जाएगा। तो किसी के बाल अगर चले गए हैं या आए ही नहीं, मान लीजिए कोई आदमी ऐसा हो कि शुरू से ही उसको पेशानी के पास वहाँ सर पर बाल नहीं हैं, या थे मगर उम्र ढल गई, चले गए, साफ़ हो गया सर सामने का, तो बस पेशानी जितनी होती है आमतौर से बस उतना धोएंगे। तो आदतन जहाँ तक बाल होते हैं उससे नीचे तक किसी के बाल, अच्छा जहाँ तक आदतन बाल होते हैं वहाँ तक ही धोएंगे। और अगर आदतन जहाँ तक बाल होते हैं उससे नीचे तक किसी के बाल जमे, बाज़ लोग ऐसे होंगे कि पेशानी में आधी पेशानी तक उनके बाल होते हैं, आदतन वहाँ तक बाल नहीं होते, हर शख्स को बाल वहाँ तक नहीं होते, किसी किसी को पेशानी में भी बाल उतर आते हैं। तो उनके लिए क्या है कि ऐसा नहीं कि अब वो जो पेशानी वो बालों में चली गई उसको नहीं धोएंगे। अगर आदतन जहाँ तक बाल होते हैं उससे नीचे तक किसी के बाल जमे यानी आ गए तो उन ज़ायद बालों की जड़ तक धोना फ़र्ज़ है। यानी बुनियादी बात ये हुई पेशानी जितनी है पूरी धोएंगे। अब वो बाल सर के घट गए और पेशानी के आगे भी जो सर का हिस्सा है वहाँ बाल नहीं है तो भी पेशानी जितनी है उतनी धोएंगे। और बाल अगर सर के बाल पेशानी में तक भी आ गए यानी पेशानी में से भी बाल उग गए है बाज़ लोगों को ऐसा कि पेशानी में भी आधी पेशानी तक बाज़ वक्त बाल आ जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि उनका चेहरा वहाँ से शुरू है बल्कि वो पेशानी जो सर के हिस्से में चली गई उसको भी धोएंगे। इसका ख्याल करना चाहिए। दूसरा मसला देखें। अब देखिए ये सूरत भी हो सकती है, मूंछों या भावों या बच्ची के बाल, बच्ची का मतलब नीचे का जो होंठ है हमारा उसके नीचे होंठ से लगे हुए थोड़े से बाल होते हैं, उसको कहते हैं मूंछों यानी मूंछ, या भावों यानी जो आँख के ऊपर जो बाल हैं भावों, या बच्ची यानी होंठ के नीचे के बाल घने हों कि खाल बिल्कुल ना दिखाई दे, यानी खाल दिखाई ही नहीं देती है, तो सिर्फ बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं, तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ नहीं, बालों का धोना फ़र्ज़ है। यानी वो बाल धो लेंगे तो काफ़ी होगा, उसके नीचे जो जिल्द है उस तक पानी पहुंचना और उसका भी धुल जाना ये फ़र्ज़ नहीं। और अगर उन जगहों के बाल घने ना हो तो जिल्द का धोना भी फ़र्ज़ है। बाल जब घने होते हैं तो अंदर की जिल्द दिखाई नहीं देती बल्कि बस बाल ही बाल नज़र आते हैं। इतने घने हैं तो बालों का धोना काफ़ी होगा, अंदर उसके नीचे जो चमड़ी है उसको भी धोना, उसमें पानी बह जाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर घने नहीं हैं बल्कि खाल भी नज़र आ रही नीचे की थोड़ी ही नज़र आ रही हो कोई बात नहीं, लेकिन घने नहीं है तो फिर वो बाल तो धुल ही जाएंगे, अंदर जिल्द का भी धोना फ़र्ज़ है। देखिए ये बाहरी शरीयत है, इसमें मसाइल बहुत तफसील से बयान होते हैं। ये सदरुल शरिया ने आम मुसलमानों के लिए ये किताब लिखी है, तो जिस तरह के भी वाक़यात लोगों में पाए जाते हैं, जिस किस्म के भी लोग होते हैं, बहरहाल वैसा मसला यहाँ लिख दिया गया है। हज़ारों में कोई एक आदमी भी अगर वैसा हो तो सदरुल शरिया ने उसके हिसाब से भी मसाइल को लिख दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा करम है सदरुल शरिया का कि उन्होंने हज़ारों में एक मुसलमान भी अगर कोई किसी मखसूस हालत में हो तो उसके लिए भी मसले लिख दिए हैं, तो आवाम के लिए है पेश आ सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगर मूँछें बढ़कर लबों को छुपा लें, यानी मूँछ इतने बड़े हैं कि होंठ छुप गए उसी में, तो अगरचे घनी हो मूँछें हटाकर लब का धोना फ़र्ज़ है। मूँछें जो घनी होती हैं ऊपर जो मूँछों की बात हुई है वो मूँछ अपनी हद में है तो वो घनी है तो उसका धुल जाएगा, लेकिन ये मूँछ जो है हद से आगे बढ़कर होंठ को भी छुपा रहे हैं। इतनी बड़ी मूँछ रखना भी नहीं है कि होंठ छुप जाए, तो इसलिए उतनी बड़ी कोई रखे तो उसका एतबार भी नहीं किया जाएगा। मूँछ हटाएं और होंठ को पानी पहुंचाएं, ऐसा नहीं कि बस मूँछ को पानी पहुंच गया तो उसके नीचे होंठ छुपा हुआ है उसको पानी ना पहुंचे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बल्कि वो मूँछों को उठाएंगे और नीचे होंठ को पानी पहुंचाएंगे। दाढ़ी के बाल, अब दाढ़ी का मसला देखें। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है।
यहाँ देखिए ऊपर आपको बता दिए हैं घना क्या होता है, यानी बिल्कुल नीचे की खाल दिखाई ही नहीं दे रही है तो उसको घनी दाढ़ी कहेंगे। और नीचे की जो चमड़ी है, खाल है, जिल्द है, वो दिखाई दे रही है तो उसको घनी नहीं कहेंगे। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज है, यानी बाल तो धुल ही जाएंगे, वो अंदर जिल्द भी धोएंगे हम, ख़ास तौर पर उस जिल्द का धोना ज़रूरी है। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज है, और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के दायरे में आए उनका धोना फ़र्ज है। तो गले की तरफ दाढ़ी दबाएं तो दाढ़ी के जितने बाल चेहरे से लग जाएंगे, चेहरे के दायरे में, हद में आते होंगे, तो उसका तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के दायरे में आए उनका धोना फ़र्ज है, और जड़ों का धोना फ़र्ज नहीं। और जो हल्के से नीचे हों, यानी चेहरे से गले की तरफ दबाने के बाद चेहरे के दायरे में जितने बाल आए वो तो धोना फ़र्ज है, उसके बाद जो इजाफा हो रहे हैं, जो हल्के से नीचे हों, उनका धोना ज़रूर नहीं। और अगर कुछ हिस्से में घने हों और कुछ छदरे, तो जहाँ घने हो वहाँ बाल, और जहाँ छदरे हैं उस जगह जिल्द का धोना फ़र्ज है। अगर आपकी दाढ़ी घनी है तो आप चेहरा धोएं, चेहरे में आपके बाल धुल जाएंगे जो चेहरे के दायरे में आ रहे हैं, ये वज़ू के लिए काफ़ी होगा। अगर पूरी दाढ़ी के बाल अगर धोए जा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चेहरे के दायरे में जितने बाल आ रहे हैं उतने तो धोना ही है। और घनी है दाढ़ी चूँकि, तो ये जो बालों की जड़ों में जो जिल्द और खाल है उस तक पानी पहुँचना और वहाँ उसको धोना ये फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप पहुँचाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर दाढ़ी घनी नहीं है बल्कि वो छदरी है और अंदर की खाल नज़र आ रही है तो फिर अंदर जिल्द में पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अब देखिए मसला नंबर 5, लबों का यानी होठों का वो हिस्सा जो आदतन लब बंद करने के बाद ज़ाहिर रहता है उसका धोना फ़र्ज है। तो देखिए हम जब होंठ बंद रखते हैं आम तौर से तो हमारे होंठ के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो सूखा रहता है, एक हिस्सा जो गीला रहता है यानी तर। जो तर हिस्सा है वो अंदरूनी हिस्से में आता है, वो मुंह के अंदरूनी हिस्से का, और जो सूखा है वो बाहर के हिस्से में, बैरूनी हिस्से में होता है। तो जब हम आम अंदाज में अपने होंठों को बंद रखते हैं तो होंठ का आधा हिस्सा अंदर हो जाता है, आधा हिस्सा बाहर रहता है। तो जो बाहर है उसको धोना ज़रूरी है। अब अगर कोई होंठ इस तरह बंद कर ले कि पूरे होंठ अंदर हो गए, अब मुंह धोया, उसके बाद जब मुंह खोला बराबर किया तो होंठ सूखे हैं तो वज़ू नहीं होगा। तो वही बता रहे हैं, लबों का वो हिस्सा जो आदतन लब बंद करने के बाद ज़ाहिर रहता है उसका धोना फ़र्ज़ है। तो अगर कोई खूब ज़ोर से होंठ यानी लब बंद कर ले कि उसमें का कुछ हिस्सा छुप गया, कि उस पर पानी ना पहुंचा, ना कुल्ली की कि धुल जाता, यानी कुल्ली भी नहीं किया, कुल्ली करें तो होंठ पर तो पानी बह ही जाता है, तो वज़ू ना हुआ। हाँ, वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद करने में ज़ाहिर नहीं होता उसका धोना फ़र्ज़ नहीं। खुलासा ये हुआ कि आप वज़ू करते वक्त अपने मुंह को आम अंदाज में बंद रखिए, ज़ोर से होठों को बंद ना रखें। रुखसार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं उसका धोना फ़र्ज़ है। उसको आप सर में मत जोड़िए, वो चेहरे में ही है, उसको धोना फ़र्ज़ है। हाँ, उस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों और वहाँ बालों का और जहाँ बाल ना हो या घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है। मसला नंबर 7 भी देख लीजिए। नथ का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे, वरना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये दरअसल देखिए ये मसला ख़वातीन के लिए है कि नाक में अगर सुराख बनाया गया है, अगर वो सुराख बंद है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर बंद नहीं है तो फिर पानी इस तरह बहाएं कि पानी वहाँ पर भी पहुँच जाए, और वहाँ पर जो भी ज़ेवर वगैरह लगा हुआ है उसको ठीक तरीक़े से हिलाकर पानी उस सुराख में
पहुंच जाए, इस तरह कोई अमल कर लें। मसला नंबर 8 देखें, आँखों के ढेले और पपोटों की अंदरूनी सतह का धोना कुछ दरकार नहीं बल्कि ना चाहिए कि मुज़िर है। देखिए ऊपर बताया गया चेहरा कहाँ से कहाँ तक है, तो पेशानी जहाँ से शुरू हो रही वहाँ से ठूड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक, इसके दरमियान तो आँखें भी आ गई, लेकिन आँखों को धोना नहीं है, आँखों को धोना नहीं है और आँखों हमारी जो पलक के अंदरूनी हिस्से है उसको भी धोना नहीं है। मुँह धोते वक्त आँखें ज़ोर से मेच लीं यानी बंद कर लीं कि पलक के मुत्तसिल खफीफ सी तहरीर बंद हो गई। यानी आँख ज़ोर से बंद करेंगे तो हमारे पलक के कुछ हिस्से होंगे जो छुप जाएंगे, मुड़कर अंदर हो जाएंगे और पानी नहीं पहुँचेगा। ऐसा किया किसी ने वुज़ू में और उस पर पानी ना बहा और वो आदतन बंद करने से ज़ाहिर रहती हो। आप सोने के लिए जब आँख बंद करते हैं तो आम अंदाज में बंद करते हैं, उस तरह बंद करने में वो हिस्सा खुला है लेकिन आपने ज़ोर से बंद किया तो वो हिस्सा छुप गया और आपने वैसे ही मुंह धो लिया, फिर बाद में मुंह धोने के बाद आपने आँख खोली, तो अब क्या हुआ कि लंबाई में यानी जो सूखा रह गया वो एक लकीर की तरह बन जाएगा, कि वो सूखा हो गया तो एक लकीर की तरह बन जाएगा, यानी लंबाई में वो हिस्सा बारीक सा धागे की तरह वो सूखा रह गया, थोड़ा सा वुज़ू हो जाएगा, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। और अगर कुछ ज़्यादा धुलने से रह गया यानी इतना ज़ोर से बंद कर लिए कि बहुत ज़्यादा हिस्सा, तो फिर तो वुज़ू नहीं होगा। वो थोड़ी बहुत एक लकीर सी बन गई है तब तो कोई बात नहीं, जैसे हम कोई स्याही की एक लकीर थोड़ी सी बन जाती है कागज़ के ऊपर, ऐसी थोड़ी सी लकीर बन गई है तो वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से आंखें बंद कर लीं और उसके बाद बहुत सारा हिस्सा वो सूखा रह गया, वुज़ू नहीं होगा। मसला नंबर 10 भी देखें, आँख के कुएं पर पानी बहाना फ़र्ज़ है मगर सुरमे का जिर्म कुएं या पलक में रह गया और वुज़ू कर लिया और इत्तला न हुई और नमाज पढ़ ली तो हरज नहीं, नमाज हो गई, वुज़ू भी हो गया, और अगर मालूम है तो उसे छुड़ाकर पानी बहाना ज़रूर है। देखिए आँख का ढेला तो धोना नहीं है, यानी आँख जो जिसको हम आँख बोलते हैं, जिसको हम उंगली नहीं लगा सकते, उंगली लगाने से वो दुखेगी, दर्द होगा, जलन होगी, वो तो आँख का ढेला है। लेकिन ऊपर तो पलक है, नीचे जो हिस्सा है जहाँ हम सुरमा वगैरह लगाते हैं उसी हिस्से की यहाँ पर बात हो रही है कि धुलने में वो हिस्सा आ जाना है। आँख नहीं धोना है मगर वो हिस्सा धुलने में आएगा। अब वहाँ पर सुरमा सूख कर वहाँ पर चिपक गया है, ऐसा वो चिपक गया कि पानी उसके नीचे नहीं पहुँचेगा, या पलक में ही रह गया है, पलक का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, और वुज़ू कर लिया और मालूम नहीं हुआ, नमाज भी पढ़ ली तो हरज नहीं, नमाज हो गई, वुज़ू भी हो गया। और अगर मालूम है तो पहले ही आपको इत्तला हो गई कि यहाँ पानी नहीं पहुँचा है, सुरमा जमा हुआ है या कुछ जमा हुआ है, तो उसे छुड़ा कर पानी बहाना ज़रूरी है। मालूम नहीं हुआ तो माफ़ है, मालूम हो तो फिर वो पानी पहुँचाना होगा। पलक का हर बाल पूरा धोना फ़र्ज़ है, अगर उसमें कीचड़ वगैरह कोई सख्त चीज़ जम गई, कुछ भी ऐसी सख्त चीज़ जम गई कि अब वो पानी नहीं पहुँचा, कुछ बाल, कई बाल उसमें मिलकर हैं, कोई चीज़ जम गई है, पानी नहीं पहुँचा है, ऊपर ऐसी सतह बन गई बालों के ऊपर, तो छुड़ाना फ़र्ज़ है, यानी पानी से उसको नरम करें और छुड़ाएं, फिर हम चेहरा धोएं। ये चेहरा धोने में कुछ एहतियातें थी, किसी के साथ ये मसाइल पेश आ सकते हैं। आप ये ना समझें कि ऐसे मसले किसके साथ पेश आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ पेश आ सकते हैं, और ये आवाम के लिए किताब लिखी गई है। सदरुश्शरिया ने इसे हर मुसलमान को जहन में रख कर लिखा है। हज़ारों में कोई एक शख्स भी हो जिसको ऐसा मसला पेश आ सकता हो, सदरुश्शरिया ने उसको लिख दिया है, आप इसको और से पढ़ें।